Good morning, students. Today we will discuss product method. Another name of it is output method and value addition method. We will try to find out the value of national income using product method. As we all know that there are three methods to calculate national income. First one is income method, second one is product method, or we can say third one is expenditure method. Today we will discuss about product method. Before starting to the formula, before going to the formula, we will try to understand what is the definition of national income, as we have already discussed it in the previous lectures. That national income is the sum total of final goods and services produced in an economy during an accounting year. तो वो हम उसमें यहाँ डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं उसकी फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और नेशनल इनकम किसको बोलेंगे अगर उसमें हम कंट्रीब्यूशन जो है रेजिडेंट्स की, जो रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन किया है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो now we'll move to the first step to calculate national income using product method. The first step is to identifying the various producing sectors. तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, second one is secondary sector, and third one is service sector. First of all, we'll discuss primary sector. When we talk about primary sector, it means we are talking about the production in which primary sector is considered to be the sector in which producing units are directly dependent upon the nature. It means in it we are trying to generate the production from using natural resources. So that is primary sector. For example, farming, animal husbandry and fishing, etc. तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जिसमें प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करके। जैसे फार्मिंग है, खेती हम करते हैं, तो किसान जो है जब भी खेती करता है उसको ज़मीन का डायरेक्ट यूज़ करता है। फिर उसके लिए नेचर का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि मौसम अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, बारिश का इम्पैक्ट उसमें हम देखते हैं। तो फार्मिंग एक एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर का। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री है और फिशिंग है। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंडरी सेक्टर. Secondary sector is also known as we can say industrial sector or manufacturing sector. As the name suggests, that whenever we are using a final product of primary sector as raw material and then convert it into the new goods, final finished goods, then we can say we are talking about secondary sector. तो secondary sector क्या है? ये वो sector है जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फाइनल गुड्स में। तो वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल कि आप कॉटन जो है उसको आप यूज करिए और उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कॉटन को जब आपने थ्रेड में कन्वर्ट किया तो वो आपका प्रोडक्शन हुआ। तो वो किस में प्रोडक्शन हुआ? वो सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। फिर आगे और भी इसको हम कह सकते हैं कि थ्रेड को अगर क्लॉथ में कन्वर्ट कर दें तो वो भी प्रोडक्शन हुआ। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। इसी तरह से services, as its name suggests, that it is also known as tertiary sector. Services generation sector. For example, I am teaching you, it means I am providing my services to you. So this is the contribution of service sector. Whatever I am getting salary from the institute, definitely it is the production of my services. So let's move to the formula. How to calculate national income using output method. First of all, whenever we try to find out the value of national income using product method, we will get GDPMP, gross domestic product at market price. The definition of it is also it already has been done in the previous lectures. तो सबसे पहले जब भी हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना चाहेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जब भी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम GDPMP को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम पहले ही पिछले लेक्चर्स में इसको समझ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन को।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का जीडीपीएमपी। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, whatever the production sector, the various production sector is producing and providing it, selling it to the consumer, it is considered to be their sale. What about when we talk about the change in stock? It refers to the difference between closing stock minus in opening stock of inventory. And next one is intermediate consumption, the raw material that is used in the process of production. तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, फॉर्मूले में है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल क्या है कि जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उनकी सेल को हम पहले लेते हैं, सेल की वैल्यू पे लेते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन उन्होंने मार्केट वैल्यू बाजार की वैल्यू पे मार्केट में उसको सेल किया है, प्लस चेंज इन स्टॉक ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जितना भी स्टॉक पिछले फाइनेंशियल ईयर में था और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके स्टॉक का डिफरेंस। सपोज किसी भी इंडस्ट्री के पास फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तो क्लोजिंग स्टॉक 10 यूनिट है, और जब उसने वो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था तो सपोज उसके पास 8 यूनिट पिछले ईयर के थे, तो क्लोजिंग हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आंसर आया 2। तो ये क्या है, चेंज इन स्टॉक, ये भी उसका प्रोडक्शन है कि इस साल में उसने 2 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी पहले थे, अब लास्ट मंथ जब भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ तो 10 उसके पास है, इसका मतलब इस साल में 2 का एडिशन उसने किया है। और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन कि जो भी रॉ मटेरियल उसने यूज़ किया उसको तैयार करने में, गुड को तैयार करने में, जिसको उसने बेचा है। तो ये हमारी जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू जीडीपीएमपी, और उसमें भी कैसे कि पहले प्राइमरी सेक्टर का के ऊपर ये फार्मूला लगाकर, फिर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फार्मूला लगाकर, फिर टर्शियरी सेक्टर के ऊपर फार्मूला लगाकर जो भी वैल्यूज आएंगी उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी जीडीपीएमपी। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये एमपी क्यों आया, एमपी पे क्यों आई वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं सेल मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जा रहा है, तो वो बाजार की कीमतों पर सेल हो रहा है, यानी कि बाजार की कीमतों में टैक्स का इफेक्ट भी है, उसके ऊपर सब्सिडी का इफेक्ट भी है, तो इसलिए ये हमारे पास मार्केट प्राइस पर ये आंसर आएगा। और इसके बाद हमने यहाँ इंटरमीडिएट कंजप्शन क्यों माइनस किया, इसका भी एक लॉजिक है, रीजन है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन उसका रॉ मटेरियल है जो उसने यूज किया फाइनल गुड को तैयार करने में, इसको उसने बेचा है, और जो चीज वो बेच रहा है उसमें ऑलरेडी कीमत उसने वो ले ली है। सपोज अगर कोई प्रोड्यूसर है वो कोई रॉ मटेरियल लेता है जिसको उसको कन्वर्ट करना है, वो सपोज उसके ऊपर 800 रुपये खर्च कर रहा है, अगर चेंज इन स्टॉक हम 0 ले लें, मान लें, और वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को अगर वो सेल कर रहा है 1000 रुपये में, कि 800 रुपये में कुछ रॉ मटेरियल उसने लिया, उसको तैयार किया, उसकी वैल्यू एडिशन की, तो उसको 1000 रुपये में बेचा, तो उसका एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ, 200। तो ये है उसका वैल्यू एडिशन, इसीलिए इसको वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। तो ये जब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम तक पहुंचना है, उसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम तीनों मेथड्स को समझ लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड को और इनकम मेथड को, उनको समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको कन्वर्जन को भी समझेंगे, उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया हो, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।